हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 जो क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर 1 का पार्ट है। उसका पहले ही क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। सो हमारा स्टार्टिंग वही रहेगी, लेट अस एज्यूम दैट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसे a बाय b की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर a एंड b आर को प्राइम एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड we get 5a square b square. Rearranging 5b square is equal to a square. This is our equation 1. So we know that 5 divides a square. If it divides a square, it also divides a. 5 also divides a. अब हम a को रिप्लेस यहाँ पे a इज इक्वल टू हम 5k ले लेंगे, क्योंकि हमें पता है जो 5 है वो a का फैक्टर है, तो हम किसी एक इंटीजर से उसे मल्टीप्लाई करेंगे, k इज एनी इंटीजर, कि उसकी वैल्यू a आए। तो इसमें भी हम स्क्वायरिंग on both side we get a square 25k square. Now we will replace this value a square from this equation. We will put here 5b square is equal to 25k square. Cancel it out. We get b square is equal to 5k square. So we can see that 5 is also a factor of b. 5 divides b square. If it divides b square, 5 also divides b. So we can see that 5 is a factor of a and b. We can write here 5 is a common factor of a and b. But it contradicts the fact that a and b have no common factor. A and b are co-primes as we know. So इसका एक से ज्यादा कोई फैक्टर होएगा नहीं को प्राइम नंबर्स का। अगर x एंड y को प्राइम है तो उनका एक, x एंड y को प्राइम है तो उनका एक ही फैक्टर होएगा 1, या a और b अगर को प्राइम है तो उनका एक ही फैक्टर होएगा 1। तो हमें पता है एक ही फैक्टर होना चाहिए, हालांकि इसमें 5 भी है। तो देयरफॉर आवर एजम्पशन, जो हमारी एजम्पशन थी कि रूट 5 रैशनल नंबर है, इज रॉन्ग। वो एजम्पशन हमारी रॉन्ग थी। So we conclude that root 5 is an irrational number. अब इसको लिखने का तरीका है, आप देख लीजिए। Therefore, A and B have at least 5 as a common factor, but this contradicts the fact that A and B have no common factor other than 1. This contradiction is arisen because of the incorrect assumption that 5 is a rational number. Therefore, we conclude that root 5 is an irrational number. तो इसे हमें ऐसे लिखना है। आइए हम देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन, प्रूव दैट 3 plus 2 root 5 is an irrational number. So starting हमारी फिर वहीं से ही होगी। Let us assume that 3 plus 2 root 5 is a rational number. तो इसे अगर रैशनल नंबर है तो हम इसे a और b की फॉर्म में लिख सकते हैं, a by b where a and b are co-prime and b is not equal to 0. अब इसे हम रीअरेंज कर लेंगे, 2 root 5 is equal to a by b minus 3, और सिंप्लीफाई करेंगे तो अंडर रूट 5 is equal to 1 by 2 a by b minus 3. So this, since a and b are our integers, a and b are integers, therefore हम लिख सकते हैं a by b minus 3 is a rational number. So root 5 is a rational number. बस there is a contradiction, फिर हम वही लिखेंगे, there is a contradiction that root 5 is an irrational number. Our contradiction is that we have taken the wrong assumption. तो हमें लिखने का तरीका इसका देख लीजिए, ये है since a and b are integers, thus half a by b minus 3 is a rational number, so root 5 is rational. This contradicts the fact that root 5 is irrational number.
This contradiction has arisen because of the incorrect assumption that 3 plus 2 root 5 is a rational number. Therefore, we conclude that 3 plus 2 root 5 is an irrational number. तो इसमें ऐसे ही लिखना है. ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है. ये सिमिलरली इसे भी हम ऐसे ही करेंगे. इसमें भी हम let us assume that 1 by root 2 is a rational number. अब ये रैशनल है तो इसे हम a by b की फॉर्म में लिख सकते हैं. a एंड b फिर से हम को प्राइम है हमारे. b इज नॉट इक्वल टू 0 है. ठीक है. अब इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं. a by b की जगह b by a हो जाएगा क्योंकि 1 by root 2 है. फिर से हम इसे यही लिखेंगे कि जैसे कि आप जानते हैं कि b by a जो है इंटीजर है. ये दोनों जो हमारे हैं ये इंटीजर हैं. ये इंटीजर हैं तो ये रैशनल नंबर है. ये रैशनल है तो रूट 2 भी फिर हमारा रैशनल होगा, जो कि हमें पता है वो इनकरेक्ट है. इनकरेक्ट हमारा इसलिए है कि हमारी जो एजम्पशन थी वही रॉन्ग थी. तो इसको लिखने का तरीका फिर से आप देख लीजिए. तो सिमिलर ही है जैसे पहले लिखा था, इसे भी ऐसे लिखना है. ए बी आर इंटीजर्स thus root 2 is a rational number but this contradicts the fact that root 2 is an irrational number. ये हमें पता है कॉन्ट्रडिक्शन इसकी वजह से हो रही है कि हमारी assumption थी वही गलत थी. ये रैशनल नंबर है. therefore we conclude that 1 by root 2 is an irrational number. तो ये बहुत सिंपल सा इसका सॉल्यूशन है. आइए चलिए अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं. इसमें भी सिमिलरली हमें यही करना है. लेट अस assume that 7 under 5 is a rational number. अगर ये रैशनल नंबर है तो इसे हम a by b की फॉर्म में लिख सकते हैं. a एंड b हमारे को प्राइम है. b इज नॉट इक्वल टू 0 है. b इज नॉट इक्वल टू 0. अब इसे हम रीअरेंज कर लेते हैं. अंडर रूट 5 a डिवाइडेड बाय 7b. तो ये फिर से हम यही लिखेंगे कि a और b जो है हमारे इंटीजर हैं. देयरफॉर a by 7b हमारा एक रैशनल नंबर है. ये रैशनल है. ये रैशनल है तो हम कहेंगे रूट 5 भी हमारा रैशनल है. पर हमें पता है ये कॉन्ट्रडिक्शन है. ये रैशनल नहीं है. रूट 5 इज नॉट रैशनल नंबर. इरैशनल है ये अगर इरैशनल है तो फिर हम यही कहेंगे कि हमारी जो assumption थी वही गलत थी. देखिए कैसे लिखा है. a by b is an integer thus root 5 is a rational number but this contradicts the fact that root 5 is irrational. This contradiction is reason because of the incorrect assumption that 7 root 5 is a rational number. So we conclude that 7 root 5 is an irrational number. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो ये चलिए हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है. इसमें भी हमें यही करना है. लेट अस assume that 6 plus root 2 is a rational number. अगर ये रैशनल नंबर है हमारा तो इसे a और b की फॉर्म में लिखा जा सकता है. where a and b are co-prime numbers and b is not equal to 0. इसको हम रीअरेंज करेंगे तो रूट 2 a माइनस b a डिवाइड बाई b माइनस 6. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. तो इसमें फिर से हम वही लिखेंगे a and b are integers thus a by b minus 6 is a rational number. फिर हमारा वही लिखने का तरीका आगे पूरा रहेगा जैसे कि लिखा हुआ है. thus a by b is 6 is a rational number but this contradicts the fact that root 2 is irrational. This contradiction is arisen because of the incorrect assumption that 6 plus root 2 is a rational. Therefore we conclude that 6 plus root 2 is an irrational number. तो सारे क्वेश्चन हमारे ये वाले बहुत इजी हैं और अगर एग्जाम में आते हैं तो आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए. इसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है. बस ये स्टेटमेंट है वो सबका एक ही कॉमन स्टेटमेंट है. अगर आप चाहें तो इसे याद भी कर सकते हैं वरना प्रैक्टिस आप 2-4 बार करेंगे तो ये हो भी जाएगा. तो यहीं पे हम वीडियो को रोकते हैं. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.